Hello everyone. Welcome to Guruvar Ki Gupshup with me today on this live. And today is this wonderful, amazing session of Courage to Heal. So, hi Nikita, how are you? Welcome everybody. Let us wait for the rest of you to join. I'm 3 minutes early. So, just waiting for the others to come and join us on this live. Hi. Okay. Courage to Heal series that I run is all about normalizing conversations around mental health. And we have our Hello. guest here. Hi, Sejal. Just give me 1 Hi, how minute. are So you, I would ma'am? just like to. Yeah. I'm good. So, as you all know, my followers, that this Courage to Heal series is all about normalizing conversations around mental health. And I invite people, whoever, wherever they have worked from anywhere in the world, to come and do this live with me and to talk about their own journey of healing, transformation in whatever way that they have done, whatever interventions they have done, so that about this and everyone can be more non-judgmental, more open about conversations around mental health and around taking help for mental health, and to inspire more and more people to come out and talk about the problems that a lot of us face on a day-to-day basis. So keeping this in mind, today I would like to invite Dr. Sejal Doshi. Just 1 second, please give me a moment. Uh, Yeah. uh, so you all know I have a pet dog and he's blind, and every time in my life he will bark for some reason or the other. So I had to remind my family to take him away. So that is Dr. Sejal Doshi Kapadia. She Yes. calls herself on Instagram as Sejal Kapadia, and she's based out of Vadodara, and she's a mother of two beautiful girls. And today she is here to talk about her journey, uh, towards healing and transformation in her own words. Uh, Yes. we also would respect her privacy, so she will be sharing things that she's comfortable to share about. And more importantly, I'm very, very grateful, Sejal, and I'm very, very happy that you have agreed to do this live with me, like so many others who have done this before. I really applaud your courage and Thank your you so much. your desire to inspire many people about this. आपने हमने बहुत सारी बातें की है लाइफ के बाहर भी, जिसमें मुझे लगा कि you are very very enthusiastic about sharing your learnings and sharing Yes. your insights with people and women especially of Definitely. your age, your profile. So Sejal, Yes. first over to you. Would you like to say something about yourself? We will keep this conversation Hindi, Gujarati, English, બધું mix, because Sejal ને હું બંને Yes. ગુજરાતીઓ છીએ. So Yes. yes, Sejal. So, all you know, my name is Dr. Sejal Doshi. I am a mother of two daughters and I'm learning, matlab, I am a medical doctor practicing radio diagnosis based on Vadodara. And I am basically from Ahmedabad only. So, my Guju roots is very strong. I'm pure Pakka Ahmedabadi. And but that's about my introduction. And first of all, ma'am, I want to thanks Instagram because Hmm. as I already told you, you are my one of the best discovery through the Instagram. On Instagram. Yes, Okay, yes, on thank you so Instagram. much. We found each other. Yes. Because I have found मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि social media ये negative सब है, but I found so much positive from social Yes. media, from Instagram. Absolutely. So I Very good. need to thank Instagram first because this live is a very first experience for me because I'm not For into you, yes. so much public speaking. Yes, because we ના ના are બિલકુલ, doctor. તમે ઓલરેડી અત્યારે પબ્લિકમાં બોલી રહ્યા છો, so that's हाँ amazing, मतलब Sejal. that is my first experience that I want to tell you. Yes. And sharing my journey, first of all, I want to put two disclaimer. Hmm. First is that any therapy or any mental health support or any coach, therapy is not a magic. Because I was earlier used to believe that जब हाँ. मैं एंटर हुई थी वेलनेस स्पेस में आई हैव दैट मिथ इन माय माइंड आफ्टर 2 3 सेशन आई विल बी सो डैम गुड
दैट आई ऑनेस्टली टेल यू, ऐसा था मेरे माइंड में. सो और मैंने फर्स्ट आपको ऑफ ऑल बोला थेरा था कि ये यस. मेरे ये मैजिक नहीं है, मैं जादू नहीं कर सकती, जादू चाहिए तो बाबा जी के पास जाओ. Yes, yes, exactly. That's why I putting it. The therapy is not a magic, and healing is a journey. Like I'm still on my journey. It's not like after this much session you will be able to perform. मतलब you able जो आपने सोचा है वो सब हो जाएगा. It's not possible. सही बात है, सही बात जो है. मैंने मतलब ये मेरा पहले ऐसा था कि नहीं इतने अब तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं. बट नाउ आई एम एबल टू प्रोसेस इट. इट इज अ जर्नी. एंड हाउ बिल्कुल सही. फार आई केम इट इज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किया है. प्रोग्रेस किया. हाउ फार तो आई पहले केम. आपकी यस जर्नी कहाँ से शुरू हुई ये बताइए. तो यस सेजल आप यस. थोड़ा सा ये जितना हो सके कंफर्टेबल हो आप शेयर कीजिए कि आप पहले तो वेलनेस स्पेस के पास आई, उससे पहले कौन सी चीजों के साथ आपको या तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, या कौन सी चीजें या ऐसी थी जिसके साथ आप रूटीन बेसिस पे स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि आप वर्किंग मदर यस भी हैं, आप फुल टाइम काम यस करती यस हैं, राइट? तो यस हाँ यस. जी. आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आई एम अ वेरी आई विल यूज वॉज आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. मतलब मुझे एंगर दिलाना इट्स लाइक वेरी सिंपल. मतलब यू कैन डू वन थिंग एंड आई विल गेट एंग्री. So I was very angry in nature. On see over years. But after my मतलब first daughter was born, मतलब in my postpartum stage, the anger become evil to me. Like जो physical symptoms है anger के, जैसे palpitation होना, perspiration होना, आप continuously एक अंदर से restless feel कर रहे हो, वो एक होने लगा on day to day basis. राइट. एंड इट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी कि मैं उसका कुछ कर नहीं सकती. मैं मतलब क्योंकि हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं मॉडिफाई करने के लिए कि चलो आज गुस्सा नहीं करोगे, बट ये कंटिन्यू नहीं हो सकता. यू कैन करेक्ट. मोटिवेट योर सेल्फ 1 day 2 day 1 hour 2 hour. मतलब वो इतना अगर एक डे मेरा अच्छा जाए एंगर के बिना तो मैं खुश समझती थी अपने आप को कि चलो इस दिन आज मैंने गुस्सा नहीं किया. एंड ड्यू टू दैट एंगर माई एल्डर डॉटर वो अफेक्ट होने लगी उससे. Because obviously angry mother affect their child in very bad way, right? तो एक वो इश्यू था. then honestly अभी मुझे जो मैं बोलने जा रही हूँ it was very overwhelming for me, but I will share because I know so many mothers are going through this, but nobody can speak about it. I was Yes. hitting my child very badly on day to day basis, almost you can say day to day basis. And that matlab that bothers me a lot because that comes along with guilt. Obviously you hit someone and you also and hit someone matlab you hit your life. My daughter is my life and I hit her in out of my anger, out of my rage, and I used to feel so much guilt about it. So it anger, guilt, hitting, anger, guilt, it forms a very cycle in my life. Yes, it's like a circle जो ऐसा continuous है. Like वो भी मेरी daughter भी predict करने लगी थी कि अभी ये हुआ ना तो मम्मा यही करेगी. Like I was so predictable at that time. And I was suffering this mental जो आप बोल सकते हो कि mental trauma है कि जो and then क्या होता था उसकी वजह से मैं कभी कभी डिप्रेस हो जाती थी. आई वॉज एंग्जियस ऑन डे टू डे बेसिस. ये सब मैंने आई थिंक 6 to 7 year तक ये मेरा चला. राइट नाउ माई डॉटर इज 9 year old. एंड जब मैंने ये एंगर का आपने मैं जब इंस्टाग्राम में मिली आपको और मैंने ये एंग्री का एक रील देखा था कि जो इट्स अ गन पाउडर इनसाइड यू, राइट. एंड आप गुस्सा अंदर से, गुस्सा आप बाहर की चीजों से नहीं आता है, गुस्सा आपके अंदर ही है. सो दैट हिट मी हार्ड एंड मुझे लगा कि नहीं नाउ हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस. And I DM you and you give me the information about wellness space and I instantly contact Bhumika over there. And वहां से मुझे डेट भी याद है, मैंने 26 नवंबर को भूमिका से मैसेज पे बात की थी एंड 1 दिसंबर मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था. बिकॉज इट्स अ जर्नी ना. आप जैसे आप अपनी बर्थडे नहीं भूल सकते, ये मेरा रीबर्थ है तो मैं नहीं भूल सकती कि कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, राइट. सो फर्स्ट दिसंबर ऑन 1 दिसंबर 2021 आई हैव अ सेशन विथ Rene ma'am and I instantly feel that somebody is there to understand me, like because Yes, very all true. See, surrounding people are judged. Sorry for interrupting you. नहीं नहीं. See, I would like to just tell my followers कि देखिए जब कोई बंदा यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी ये गलतियां थी, ये मेरी चैलेंजेस थी, तो हमें
ना जज करना चाहिए, पर हमें ये समझने की क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए कि बंदे में ये अवेयरनेस आई और ये अवेयरनेस के बाद ये बंदे ने क्या किया और इसको कैसे ओवरकम किया। तो ये मैंने देखा है कि घर घर में लोग एंग्री मदर्स हैं, बहुत सारे घर में एंग्री मदर्स हैं। यस और ऐसा जरूरी नहीं है कि मारना पीटना ही बहुत खराब किस्म का अब्यूज है। इनफैक्ट जो मम्मियां शट डाउन हो जाती हैं, अपने आप को बच्चे से डिटैच कर देती हैं, वो भी उतना ही टॉक्सिक है बच्चे के लिए जितना कि मारना। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट जज people who accept that what was not working for them and how they took help. This is the first thing I want to tell my followers here, that it requires immense courage for people to come and talk about what didn't work for them, and as specifically as Sejal is doing. But at the same time, आप सेजल की जर्नी सुनोगे तो शायद ये पता चलेगा कि उसके अंदर का जो बच्चा है, her inner child part was the one that needed the most love. So when she had not loved her, or she was not taught to love her own inner child part, that is when all that anger came. तो प्लीज आप हैंग ऑन सुनते रहिए उसकी जर्नी के बारे में, और फिर जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है या समझना है या डिसीजन लेना है वो आप उसके बाद लीजिए. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स अबाउट दिस होल जर्नी. ओके, कंटिन्यू सेजल. तो यस आप आई वेलनेस स्पेस में क्योंकि आपका प्राइमरी रीजन ये था कि आपको समझ में आ रहा था कि आपका गुस्सा सही नहीं है लोगों के लिए, आपकी यस फैमिली लाइफ अफेक्ट करती थी, और आप गुस्सा गिल्ट के चक्कर में आप और फंसी मुझे हुई थी. जो वायलेंस जो सब बात करे मुझे वो स्टॉप करना था. राइट, आई वांट टू हाँ, सही स्टॉप बात दैट. है, सही बात इसीलिए है. मैं आई थी कि क्योंकि समहाउ आई कुडंट कंट्रोल. दैट्स करेक्ट, व्हाई करेक्ट. आई हैड अ करेज कि नहीं मुझे अभी हेल्प लेनी है, एंड इट इज फाइन टू टेक अ हेल्प. फर्स्ट वेरी थिंग ये गुड. भी मुझे. यस. आपको तो आपके मैं वो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ने आपको इस मामले में सपोर्ट किया था कि आपको तभी भी जज करते थे थेरेपी के बारे में या हेल्प लेने एक्चुअली के बारे में? जब मैं पहली बार आई तब सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही पता था ये, एंड हम्म, ही इज थ्रू आउट सपोर्टिव. हम्म. एंड ओवर द टाइम मैंने अपने बहुत सारे कलीग्स और सबको किया, दे ऑल सपोर्ट मी. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दे विल जज मी. राइट नाउ आई डोंट फियर. अगर जज करना है तो भी करे, आई डोंट माइंड राइट नाउ. बट एट दैट टाइम मुझे वो फियर था, बहुत सारा फियर था कि लोग क्या सोचेंगे, ये तो कैसी है और ये ऐसी निकली. मतलब अदर साइड, फ्लिप साइड ऑफ मी, इट विल बी विजिबल टू एवरी वन. सो इट वुड यस, बी. यस, एब्सोल्युटली. यस. तो ये मैंने बोला ना पहले कि ये जर्नी है. आप जो पहले थे, हाँ, मतलब आप पहले से कहाँ आए हो वो ही मैटर करता है. कोई अभी एब्सोल्युटली, भी मुझे जज एब्सोल्युटली, करे, अभी मुझे जज करे, आई रियली डोंट माइंड. I say them एब्सोल्युटली. God bless you, because seriously it doesn't bother me right now. Because ये वेरी मुझे गुड सेजल, एब्सोल्युटली. यस, क्योंकि ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि आप आपकी गलतियां एक्सेप्ट करना ऑन द बहुत दिस डिफिकल्ट है, सोशल. यस, बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट. बहुत डिफिकल्ट. नहीं, बट बहुत अच्छा. भी आप मुझे ये बताइए सेजल कि आप आई और आपने जो भी अपनी थेरेपी जर्नी की उसमें से आपको दो तीन कौन सी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बड़ी इंसाइट्स मिली जिससे कि आपको हम्म. लग रहा है कि आपके अंदर ये जो परिवर्तन आया या आपका बिहेवियर चेंज हुआ या आपका जो पूरा देख. ऑफ कोर्स आपको अवेयरनेस तो थी, तो आप उन यस. पेरेंट्स में से नहीं थी जिनको अवेयरनेस ही नहीं थी. मतलब ऐसे भी आते हैं यस. जो हमारे साथ आर्ग्यू करते कि अरे बच्चों को तो मार के ही बड़ा करना चाहिए. उनके साथ हमको जीरो से शुरू करना पड़ता है. आपको ये तो पता यस. था कि प्रॉब्लम क्या है, आपको ये भी पता था कि प्रॉब्लम की इम्पैक्ट क्या पड़ रही है, और आपको ये भी सिर्फ ये नहीं पता था कैसे सॉल्व करना है. तो ये सॉल्विंग यस. वाली जर्नी आपकी कैसी रही? आफ्टर आई थिंक 1 or 2 सेशन विथ यू, मुझे हम्म, इंसाइट मिला कि देर इज अ लॉट टू हैव विथ माई इनर चाइल्ड, माई चाइल्डहुड सेल्फ. कि आई वॉज सफरिंग. मुझे ऐसा लगता था कि आई लव माई बॉडी, आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस. बट जब वो ब्रेक थ्रू हुआ थ्रू इनर चाइल्ड हम्म, वर्क, तब मुझे पता चला आई वॉज बॉडी शेमिंग माई सेल्फ. बिकॉज आई वॉज ऑलवेज यूज टू हैव, मतलब यूज टू अ फैटी चाइल्ड. एवरीबडी यूज टू से मैं लाइक गुजराती में बोले ने बड़द, लाइक हम्म. इट्स अकॉर्डिंग टू वो मुझे. और ये मुझे ऐसा लगता था कि ये सब चीजों के कोई इफेक्ट नहीं. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट. दैट इज ओवर कॉन्फिडेंट. दैट वॉज द ओवर कॉन्फिडेंट. हम्म. मैं अपने आप को तो सिर्फ मतलब अच्छा एक मिनट, फील आप बाहर से कॉन्फिडेंट दिखाती थी लोगों को, पर अंदर ही अंदर जब आपको आपके बॉडी शेमिंग होता था, आपको जब बैल बुलाया जाता था, आपको मोटी बुलाया जाता था, तो अंदर ही अंदर आपको शायद
अपने आप Yes. पे गुस्सा, अपने आप पे Yes. एंगर Yes. होना शुरू हो गया था, Yes. पर Yes. बाहर से Yes. इसको Yes. आपने कन्वर्ट किया और आपने उसको चैनलाइज किया कॉन्फिडेंस में, और आपने कॉन्फिडेंस में, बाहर यस। कॉन्फिडेंस दिखाया। यस यस, कॉन्फिडेंस दिखा। एंड ग्रेट आई था। आई मतलब मुझे इंसाइट तब मिला कि आई चैनलाइज ऑल माई एनर्जी टू माई स्टडी। दैट वाज माई कोपिंग हम्म। मैकेनिज्म, yes, as you राइट know. राइट। And I became a doctor eventually. So that was the first breakthrough ke I was not actually accepting and loving myself. That was big insight, right? And second insight is I had so much fear, लाइक मैं अगर ये नहीं करूंगी तो ये होगा, ये नहीं करूंगी तो वो होगा। एंड दैट ऑल फियर हम्म। आई सी इन माई डॉटर। लाइक मैं मेरी डॉटर से जो भी मेरी कन्फ्लिक्ट होती है, कि जो भी मेरा झगड़ा होता था, जो भी होता है, वो उसी वजह से होता था। कि लाइक मुझे हमेशा ऐसा वो इंसाइट हुआ था मेरा शायद 4th या 5th सेशन में, कि मुझे जब मैम आपने वो क्या बोलते हैं, क्या किया था, मतलब रोल रोल ड्रामा वाला कुछ किया था ना, मुझे हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ। हेलो, मैंने, ये हाँ, रोल रोल प्ले, प्ले yes, किया था। that was a breakthrough in my therapy. हाँ। First breakthrough, you can call it breakthrough, because जो मेरी डॉटर के साथ जो भी होता था, वो मैं मेरी डॉटर को मेरी छोटी सी सेजल के रूप में देख रही थी, जो वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज थी, इतने सारे फियर्स थे। सो वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। तब मैंने कि आपको जो और खुद आप का गुस्सा था, एक सेकंड, आपको जो खुद का गुस्सा था वो आप अपनी बेटी पे निकाल रही थी, जब बेटी पे बेटी वही निकाल रहे थे, चीजें बिकॉज डिस्प्ले कर रही थी जो आप अपने आप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो नहीं ये कर बहुत पाती थी। समझने वाली बात है कि जब हम अपने आप के कहे, इफ वी आर नॉट हैप्पी विद सर्टन क्वालिटीज विद इन अस एंड वी आर वेरी एंग्री विद आवर ओन सेल्फ, और जब वही चीज अपने बच्चों में दिखती है, अपने हस्बैंड में दिखती है, अपने छोटे भाई बहनों में दिखती है, तो हमें जो हमारे ऊपर का गुस्सा है वो उनके ऊपर भी आ जाता है। एग्जैक्टली तो ये एक एग्जैक्टली, शायद इंसाइट जो आप बता रही हैं यस जो यस वहां से यस, मिली थी ये वो आपको। एक हाँ। बड़ा ब्रेक थ्रू था। यस। एंड अबाउट हीटिंग, आफ्टर आई थिंक 1 or 2 सेशन, हीटिंग वाज ऑलमोस्ट 70 to 80% इज रिड्यूस्ड। दैट वाज अ मेजर थिंग। यस, क्योंकि मेरा मेन आने का जो इंटेंशन था वो वही था कि मुझे हिट नहीं करना है, राइट? तो इट वाज रिड्यूस आफ्टर आई थिंक 2 सेशन ओनली. And after that I have a some self technique session also, and that EFT, I can हाँ। EFT is magic. It's a magic for me, because it's मतलब ऐसा होता है कि हर लोगों को ऐसा EFT इफेक्टिव नहीं होता, बट EFT was very very effective for me. So EFT अगर आपको सीखना है तो आप मैम की जर्नी विद इन में जा सकते हो, क्योंकि मैम क्योंकि अगर वो भी हाँ। कर लेंगे तो भी बहुत सारी इंसाइट्स मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपने किया तो है मॉड्यूल 1? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं, आपने। आई विल बिट, बिकॉज आई हैव अ हाँ आइडिया व्हाट इज इन द। नहीं, पर आपने यस आपने टेक्निक्स तो सीख ली है यस, सेशंस में, टेक्निक तो तो चलो सीखिए। बहुत अच्छा। यस यस हाँ यस हाँ हाँ यस हाँ, यस, वेरी गुड। तो राइट। ईएफटी आपको एंड एक बहुत अच्छी चीज लगी, EFT is a very, आपको लग रहा and है आपको humming, हेल्प करी। yes, and humming breathing, that is also very calming to ourselves, because मुझे एक वो भी प्रॉब्लम था कि I didn't feel calmness inside, always in हाँ मतलब I always used to restless like for anything, like अगर मैं घर में नॉर्मल भी बैठी हूँ, टीवी भी देख रही हूँ कभी कभी, तो मुझे अंदर से एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग हमेशा रहती थी। सही तो बात है। लोगों को लगता है, यस, जब मैंने रील्स डाले हैं वो एंजाइटी के, टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी, टेक्निक्स टू मैनेज एंगर, तो उसमें मैंने हमिंग का बोला है, तो लोगों को कई बार लगता है कि अरे हमिंग से क्या होगा, मतलब ऐसे ही आंख बंद करके करो, उससे क्या फायदा होगा, बट तो मैं एक्चुअली लाइव इतना एग्जांपल सारा हूँ, रिसर्च मैं है लाइव इतना सारा एग्जांपल हूँ। रिसर्च है कि हाँ, इससे ना सिर्फ मन शांत रहता है, पर फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। और तो ये टेक्निक यस, सिंपल है, ये चीजों के लिए कोई बहुत खास सिंपल है, जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं, बट सेजल जैसे कह रही है कि उसको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, और आगे बताइए बहुत फिर फायदा कैसी हुआ। रहा। यस। हाँ। देन आफ्टर आई थिंक 5th सेशन ऑल, मतलब ऐसा हो गया कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइक मुझे वो कुछ भी करती थी, टेंट्रम थ्रो करती थी, तो भी मुझे गुस्सा भी नहीं आता था, सब सब ऐसे नॉर्मल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि लाइक इट वॉज अ मैजिक। मुझे ऐसा उस टाइम लगा था कि यार मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं अंदर से बहुत काम फील कर रही हूँ, ऐसा लगा मुझे। एंड बहुत आई थिंक 8 to 10 days तक वो फेज रहा भी। देन आफ्टर दैट आई रिलैप्स्ड। I confess that I relapsed यस very badly. यस। That again I was angry all the time. मुझे हिट करने का मन होता था, बट वो उस टाइम उतनी अवेयरनेस थी कि मैं कॉन्शियसली
रोक सकती थी विथ एफर्ट. आई कैन स्टॉप माई सेल्फ, जो पहले कुछ भी नहीं था. लाइक आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, ऐसा था सब. जब मुझे गुस्सा था आई वॉज अनकंट्रोलेबल, ऐसा हो जाता था. बट वो तो एक आ गया था कि मैं एफर्ट से भी कंट्रोल कर सकती थी. देन इवेंचुअली उस टाइम आपको लगता है ना कि मुझे उस सेशन के बाद, मैं अभी कन्फेस करती हूँ मैम, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद इट्स नॉट वर्किंग. मुझे ऐसा उस टाइम लगा था, बहुत राइट. से लोगों को लगता है, यस, हाँ, क्योंकि you had relaxed. इट्स नॉट वर्किंग. बट उस टाइम ही शायद ऐसा एक लाइव आया था किसी साइकोलॉजिकल डांसर साइकोलॉजिस्ट के साथ. आपका एक पहला लाइव था शायद, हाँ, ही टू सबसे करेज. पहला लाइव था डांसिंग साइकोलॉजिस्ट के Yes, साथ. I remember that, and हाँ. she told in that live कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि इट्स नॉट वर्किंग, आपको नहीं जाने की इच्छा रही, देन इट्स टाइम कि आप जाओ, क्योंकि इट्स मतलब ये वर्क कर रहा है. मुझे उसने पता नहीं ऐसा क्या बोला था, एंड दैट हिट मी. एंड आफ्टर आई थिंक लॉन्ग गैप ऑफ 20-25 days आई अगेन केम फॉर सेशन. एंड इवेंचुअली मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि जितना भी टाइम लगेगा आई विल वर्क. इतना एक फिक्स हो गया था कि आई विल वर्क ऑन इट, जितना भी टाइम और लगे. एक चीज मुझे याद है सेजल, कि इसमें क्या होता है जब रिलैप्स होता है ना, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि आई एम बैक टू स्क्वायर वन. बट मुझे याद है हमने बैठ के एनालाइज किया था कि यू आर नॉट बैक टू स्क्वायर वन. बिकॉज सेजल ने क्या बोला था, मैंने कहा सेजल पहले आप मारती थी, कितनी बार मारती थी? तो उसने बोला कि हाँ, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है. पहले अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं हर रोज मारती थी, तो अभी मैडम मुझे 4-5 दिन में एक बार होता है. फिर पहले मैं जब मारती थी तो बहुत जोर का मारती थी. अब मैं मार नहीं रही हूँ, सिर्फ मारने का मन होता है, पर मैं कंट्रोल कर पाती हूँ. और तीसरा ये भी बोला था कि पहले मैं गिल्ट ही बहुत फील करती थी, अभी मैं मैनेज कर रही हूँ तो गिल्ट भी कम है. तो there was improvement which I had to point out to her. But normally clients में क्या रहता है कि एक बार मतलब पहले बहुत खराब सिचुएशन है, बराबर है, उसके बाद ठीक हो जाती है, पर फिर एक बार पटरी से खिसक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे आई एम बैक टू स्क्वायर वन. फिर हमें समझाना पड़ता है कि दिस इज नॉट स्क्वायर वन, this is probably a few steps ahead of square one, right Sejal? Yes, definitely. Yes. ऐसा मत बोलो कि आप जीरो पर गए हो, जीरो पर कभी कोई नहीं जाता है, हमें लगता है. बट मैम क्या होता है, नहीं, आप एक थेरापिस्ट हो, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, तो जब आपको क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार इतने दिन से सब अच्छा चल रहा था एंड नाउ क्या हो गया, हमको एक फियर आ जाता है कि अब क्या होगा. लाइक इट्स मेरे लिए एक फियरफुल सिचुएशन था कि लाइक ये भी वर्क नहीं कर रहा है, लाइक ऐसा हो गया था मुझे यार. यस. तो शायद वो 5th सेशन के बाद हुआ. फिर हम सेशन चलाते गए, मतलब शायद उसके बाद 3rd या 4th सेशन में फिर यू ऑल्सो गेट, मतलब मेरा केस शायद कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था कि कोई इतना सारा चाइल्ड हो, इनर चाइल्ड वर्क करने के बाद भी अभी भी मुझे कुछ ना कुछ क्वेरी रहती ही थी. तो यू सजेस्टेड कि मैं गुंजन सर के साथ एक सेशन करूं पीटीएसडी के लिए. एंड जब मैंने गुंजन सर के साथ फर्स्ट सेशन किया, इट वेंट वेल, बट पता नहीं मुझे इतना मजा नहीं आया जैसे आपके साथ आता था. तो आई डिमांड सेकेंड सेशन विथ यू, एंड यू बोथ आर सो मच जनरस कि आपने दोनों ने मेरे लिए एक साथ इकट्ठा होकर एक टाइम निकाला. एंड आई वॉज, मतलब मैं अभी भी आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी, शायद उस टाइम नहीं बोला हो तो, बिकॉज इट वॉज 2 थेरापिस्ट, वेरी बिजी थेरापिस्ट, बैक टू बैक आपकी सेशंस होते हैं, यू बोथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, वो भी मेंशन करती हूँ, क्योंकि यू बोथ टुक टाइम फॉर मी, बिकॉज यू पीपल वांटेड टू हेल्प मी इन एनी वे, कि कौन सी टेक्निक वर्क करती है, कौन सी, आप दोनों इकट्ठा मिलके आपने मेरे पे वर्क किया. एंड वो सेशन मेरे लिए आप बोल सकते हो कि व्हाट आर बिगेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ माई लाइफ. पता नहीं गुंजन सर ने क्या किया था, क्योंकि मुझे अभी कुछ याद नहीं है सीरियसली, बिकॉज गुंजन सर ने क्या ऐसे ही रहते हैं. उससे उन्होंने क्या बोला. यस, दो सेशन आप दोनों ने लिया था, बट मेजॉरिटी ऑफ वर्क गुंजन सर ने ही किया था उस टाइम. तो मुझे एक्चुअली अभी कुछ याद नहीं कि उस सर ने क्या बोला था, सर ने क्या किया था, आंखें बंद कराई थी कि नहीं कराई थी, मुझे कुछ याद नहीं है. बट जो उन्होंने किया था, नाउ इट टर्न इनटू मैजिक. आई डोंट नो क्या किया था. और आपका एक थियोरी, बिकॉज सर वॉज पुटिंग, सर ने मुझे एक इंसाइट दिया कि यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू अचीव्ड so far, right? Not on that 30% part of you which is still not healed and still has a problem, but look at yourself, you are 70-80% improved.
और And आपने वो after जो that, एग्जांपल बोला था सेजल ने, वो yes, बगीचे वाला, I'm going to tell you. Yes, yes, I'm going to tell you. And after that, as you are, मतलब आप जैसे हो कि आप इंस्टेंटली कुछ भी बोल सकते हो, आपने एक ऐसा एग्जांपल दिया मुझे, आई एम गोइंग टू टेल दिस कि आपने मुझे ऐसा बोला कि आपका एक जैसे आपकी लाइफ एक गार्डन है एंड इट इज अ फुल इन ब्लूमिंग सीजन, लाइक सब ग्रीन है, सब पे फ्लावर है, बट एट वन कॉर्नर हैज अ वेरी ड्राई प्लांट एंड उस पे लीफ भी नहीं आ रहा है, वो शायद मरा हुआ ही पड़ा है, पर आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी पे है। लाइक जो 70-80% ब्लूमिंग है आपके गार्डन में प्लांट, उस पे आपका फोकस ही नहीं है। एंड दैट हिट मी वेरी हार्ड। वो आपका जो डिसेंसिटाइजेशन गुंजन सर का जो भी उसने किया, मतलब दैट डिड मी वेरी। अभी भी मैं कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं वही सोचती हूँ कि मैंने क्या, मेरा फोकस शिफ्टिंग जो भी थियरी है, इट इज अ एक्सेलेंट मास्टरपीस पीस फॉर मी। वाई? बिकॉज मैंने जब फोकस शिफ्ट किया, एक्चुअली ऐसा ही था कि मुझे हमेशा ऐसा, ये तो नहीं हो रहा है ना यार, इतना सब तो ठीक है हो गया, बट ये तो आई वॉज लाइक, मैं अपने आप को क्रेडिट ही नहीं देती थी कि मैंने कितना कुछ किया है, राइट? आई हैव कम सो फार, तो इतना क्रेडिट मैंने कभी दिया ही नहीं था, राइट? एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, दैट इज अ ट्रू एक्सेप्टेंस। लाइक इन आई एम 37 ईयर ओल्ड एंड शायद 37 में आज मैंने अपने, मतलब उस टाइम मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया था कि यस आई हैव अ फ्लॉज, आई हैव अ फ्लॉज, आई हैव अ मैं एक वीकनेस। चीज कहना चाहूँ, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। सो देखिए, सेजल एक ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ये हम सबके साथ रहता है कि हम सब में परफेक्शन सीख करते हैं, तो हमें हमेशा पहला उसी पे ध्यान जाता है जो चीज काम नहीं कर रही। आपके घर में 50 चीजें काम कर रही है, पर एक चीज जो खराब पड़ी है ना, आपका पूरा ध्यान उसी पे जाएगा और आपको लग रहा है कि उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो रही है। तो व्हाट शी एग्जैक्टली। सेड इज वेरी पावरफुल कि हम जो चीज चल रही है उसके ऊपर भी अगर थोड़ा फोकस दे, एनर्जी दे और उसके ऊपर ध्यान दे, तो शायद हम अपने आप के अपने बैक के ऊपर पैट कर सकते हैं कि मैंने इतनी यस, सारी चीज तो अच्छी की है लाइफ में। एंड दैट इज द यस, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। और जब आप सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहते हो, तो दूसरों के लिए भी आपका लव और एक्सेप्टेंस बढ़ता है। जब आप खुद ही को रिजेक्ट करते हो, खुद ही को पनिश करते हो, खुद ही के ऊपर गुस्सा करते हो, खुद ही के बारे में शेमफुल हो और खुद ही के को इनकॉम्पिटेंट समझते हो, तो दूसरों को आप ये सारे मेजरमेंट से नापोगे। तो दूसरों को भी अगर एग्जैक्टली। एक्सेप्ट करने का सबसे पहला पार्ट है कि खुद को एक्सेप्ट करो और खुद की लाइफ You में are जो चल right रहा है because उसके ऊपर। now you are right because now I am less judging to people. Like, and हाँ, I'm sympathetic toward other people. Like I always feel कि यार अंदर क्या चल रहा होगा हमें पता नहीं है, तो let's be less judgmental. लेट्स बी Because काइंड, हमारी एब्सोल्युटली। सोसाइटी में ये कॉमन है कि हम बहुत इजीली जज करते हैं। कोई अभी मुझे भी जज कर सकता है, बट अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो बंदा, जो पर्सन ये सब चीजों से गुजर रहा होता है, जब उसके लाइफ में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, बहुत सारे इनर प्रॉब्लम्स है, और अगर आप उसको एक अच्छा सा भी वर्ड बोल दो कि नहीं यार ये तूने अच्छा किया है, भले जितने भी प्रॉब्लम है ये तूने, ये सही इट बात है, विल इमेंस हेल्प टू दैट पर्सन। तो डू दैट एब्सोल्युटली। ऑलवेज एंड यस प्रेज द पर्सन बिकॉज एंड लेस जज। अभी ये भी हो गया कि आई एम लेस जजिंग टू एवरीबडी, तो एक ये भी वेरी एक गुड, पॉइंट है। वेरी एंड गुड। आई वॉज टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस बिकॉज हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। I was body shamed in my childhood. I was bullied in my school also because of my fatty look. Uh, Eventually, I overcome with this pseudo confidence कि नहीं नहीं मैं तो जैसे हूँ ठीक हूँ, मैं तो जैसे हूँ ठीक हूँ, but inside it was a not मतलब my body was, my inner self was not accepting it. उसे ऐसा हमेशा लगता था कि यार मतलब तू है ही मोटी, तू इतनी ब्यूटीफुल नहीं है औरों की जैसी, तो ये हमेशा अंदर से रहता था। तो ये सब पूरा निकल गया है आफ्टर दैट बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। तो अभी देखो मैंने स्लीवलेस पहना है, मैंने स्पेशली स्लीवलेस पहना है। I have a big arms and still I am wearing sleeveless because he I used to मतलब wear sleeveless in college and school time. मुझे मेरा favorite है sleeveless. मुझे कुछ भी मैं हाँ, sleeveless पहना तो I was मतलब I am मेरा happy भी, for मेरा it. भी, हाँ। Yes, and I always after lefting the college I always use, मेरे तो यार इतने जिगल वाले आर्म है मैं नहीं पहन सकती. Now it's also again jiggling but I am wearing this. मैंने स्पेशली इसीलिए स्लीवलेस पहना है अभी कि मुझे ये भी एक शो करना वेरी है गुड, कि आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ फुल्ली, राइट? मैं यस, जैसी हूँ एब्सोल्युटली। वैसी हूँ एंड आई जो भी अभी बाकी भी है थोड़ा कुछ करना, आई विल डू दैट,
राइट. आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि अभी जैसे, और ये भी एक है कि जैसे मैंने पहले बोला कि मैजिक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता, आई वॉज ऑलवेज अ काम पर्सन, ऐसा नहीं है. बस कुछ चीजें आप चेंज, लाइक आपका नेचर भी होता है ना, कुछ आप इतना चेंज नहीं कर सकते, राइट. सो बट आई हैव अ ट्रमेंडस अवेयरनेस मैम, मैं आपको बता नहीं सकती व्हाट अवेयरनेस डज टू यू, बिकॉज गुस्सा भी आता है ना, मैं अभी इतनी अवेयर होती हूँ. आई टेल, जब भी मुझे, जैसे बच्चे होते हैं, मेरी एक डॉटर 9 ईयर की, दूसरी 3 साल की, और 3 साल वाली टेरिबल थ्रीज में चली गई है, तो वो बहुत टेंट्रम, हर रोज 2-3 टेंट्रम तो थ्रो करती है. बट नाउ आई, मतलब मुझे ऐसा लगता है आई एम प्रो एट हैंडलिंग टेंट्रम्स राइट नाउ, अरे वाह, बिकॉज very good. मैं इतनी काम रहती हूँ, तो उसको ऐसा लगता है अभी कुछ हो नहीं रहा है भैया, कुछ टेंट्रम करके कोई फायदा है नहीं. और आपको तो भी याद है, आप पहली बार मेरे पास आई थी तो यू एक्चुअली, आप रो पड़ी थी कि मैम मैं कैसे करूंगी ये दोनों बच्चियों यस को, मैं कैसे. एंड यू नो, लाइक ऑल मदर्स, आई रिमेम्बर सेजल्स बिगेस्ट थिंग वाज आई वांट टू बी अ गुड मदर मैम, मुझे एक अच्छी यस माँ बनना है. और आई एम श्योर मेरे फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत सारे होंगे जिनको भी ऐसा है कि नहीं मुझे एक अच्छी माँ बनना है, बिकॉज अल्टीमेटली हम बच्चे लाते हैं दुनिया में तो हम सबको ऐसा है कि नहीं आई शुड बी अ गुड मदर, मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे ये सोच के कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी मम्मी है. तो आई रिमेम्बर वो रो पड़ी थी मेरे सामने कि मैम मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे करना है तो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ. तो आई थिंक फॉर मी एज अ थेरेपिस्ट दैट वाज द बिगेस्ट थिंग टू यस. फॉर यू के. मदरहुड इज ऑलवेज अ ओवरवेलमिंग थिंग, लाइक क्योंकि एब्सोल्युटली. हम मदरहुड के, हम ऐसे जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको समझाते हैं हाँ बच्चाएगा तो ये होगा, बट कोई उसकी डाउन साइड हमें नहीं बताता है, बहुत, राइट. हाँ, बहुत बहुत. Already सो मुझे खुद मेरा बच्चा हुआ था तो कोई मातृत्व के झरने नहीं बह रहे थे. आई वाज हेटिंग माई सेल्फ के साला पिक्चर में तो एग्जैक्टली सब दिखाते हैं कि बच्चा देख के तो आहा हा, जैसे पूरी लाइफ अपना तो ये हो गया. मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट मैं तो थकी हुई कुछ भी नहीं थी, हुआ था. इतना पेन्स हो रहा था. एंड आई वाज लाइक हे भगवान, इसको पूरा टाइम खिलाओ पिलाओ. तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट एज ग्लोरिफाइड इट इज मेड आउट टू बी. तो ये यस प्रॉब्लम ही है एग्जैक्टली. मतलब. तो और इस टाइम पे एक्चुअली हमें कवर, ज्यादा कंपैशन चाहिए. यस एग्जैक्टली. तो मदर आई ऑलवेज, मैंने आज जैसे आपने मेंशन किया, मैंने बताया था भी कि आई वॉज, जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम, आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज फेलर एट एवरीथिंग, लाइक आई वॉज नॉट, उस टाइम मुझे ऐसा फील होता था कि आई एम नॉट अ गुड वाइफ, नॉट अ गुड मदर, नॉट अ गुड डॉटर इन इवन, एंड नॉट गुड डॉटर इन लॉ ऑल्सो. मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आई एम नॉट इनफ फॉर एनी ऑफ माई रोल, राइट. मुझे हमेशा ऐसा लगता था. राइट और नाउ अब नई शायद नई नई सेजल को कैसा लग रहा है अभी? नई सेजल को, अभी मैं वही बता रही हूँ कि नई सेजल को ऐसा लग रहा है कि आई एम इनफ. रोल साइड में रखो अभी, माई आइडेंटिटी इज नॉट डिफाइंड बाय माई रोल्स, राइट. आई एम इनफ, राइट. इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज राइट नाउ आई एम फीलिंग आई एम इनफ. कुछ दिन मैं अच्छी वाइफ होती हूँ, कुछ दिन नहीं होती हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. कुछ दिन मैं अच्छी मदर होती हूँ, कुछ दिन नहीं भी होती हूँ, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. दैट इज, वेरी गुड. मतलब ये है ना, फोकस शिफ्टिंग है ये. मेरा पूरा, यू कैन कॉल इट 360 डिग्री ट्विस्ट हो गया अभी मेरा, ये शिफ्टिंग है पूरा, राइट. तो मैं नाइस, गुंजन वेरी सर गुड. को उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी. उस टाइम वो थोड़े हार्श भी थे मेरे पे, मुझे ऐसा लगा था कि सर मुझे जैसे डांट रहे हैं, बट इट वॉज नेसेसरी, राइट. बिकॉज सर ने जब, उसके बाद मैं लास्ट सेशन में मिली और मैंने आप दोनों को हक किया और मैंने सेल्फीज निकाली थी हमने, तब मुझे सर ने ऐसा बोला था कि था मैं थोड़ा हाथ, बट इट वॉज नेसेसरी फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट, कि मुझे आपको रियलाइज करवाना था कि व्हाट इज, मतलब व्हाट यू हैड, मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आपको दिखाना पड़ेगा ना मुझे. देन इट वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग. मैं, मेरे आंख में आंसू आ गए थे. यस, ही एक्ट लाइक अ फादर टू मी, मतलब जैसे फादर अपने बच्चे को हार्श होके समझाता है, बिकॉज यू बोथ टुक इमेंस इंटरेस्ट इन माई जर्नी, इमेंस इंटरेस्ट लिया था आपने, कि जैसे फोन पे भी आपने आधा घंटे बात करके मुझे समझाया था कि नहीं सेजल, वी विल वर्क ऑन इट, राइट. क्योंकि हर बीच बीच में ऐसा लगता था कि यार कुछ नहीं हो रहा है, ये टेक्निक से भी नहीं हो रहा है, वो टेक्निक से भी नहीं हो रहा है, बट इवेंचुअली यू पीपल आर, मतलब कैसा था कि आप रेडी थे, नहीं इसको हेल्प करनी है, राइट. एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस फुल्ली. वो भी एक है कि आपको एक ट्रस्ट करना पड़ेगा थैंक अपने यू सो थेरापिस्ट पे, राइट. मच. क्योंकि यस. कभी कभी ऐसा बीच में आएगा कि आपको क्या कर रहे हैं यार ये लोग, हमेशा एक ही चीजें, हमेशा ये नहीं, ये सब आपके लिए जरूरी, बिकॉज थेराप जो आप कर रहे हो वो अपने आप एक्सपर्ट हो,
तो आपको ये प्रोसेस ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में जैसे हम डॉक्टर है, हम कुछ देते हैं, पीपल ट्रस्ट नहीं करते, फिर आगे जाके उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि आई विल ट्रस्ट वॉट एवर कम्स, राइट। तो एक ट्रस्ट से एक रैपो क्रिएट होता है कैसे होता है, इंटरनली आप कनेक्ट हो जाते हो, जो कनेक्शन मैंने सर और आपके साथ फील किया है। एंड मुझे अभी भी पता है कि आप फ्यूचर में कभी भी मुझे ऐसा लगेगा कि शायद छोटी छोटी जगह, आई कैन कॉल यू, आई कैन मैसेज यू, बिकॉज आई नो कि यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। बिकॉज जैसे आप होते हैं ना कि बिकॉज गुंजन सर ने जो किया है उस टाइम पे, मतलब आई ऑलवेज यूज टू, मतलब इट्स लाइक अ फादर फीलिंग, लाइक इट्स ओवरवेलमिंग फॉर मी, बट इट्स अ फादर फीलिंग। For me also, I'm also having tears because it's also very good to see that आपकी लाइफ में इतना फर्क आया है। बिकॉज मैं ये भी बहुत डीपली मानती हूँ कि इफ अ मदर इज वेल देन द चिल्ड्रन आर ऑल्सो Yes, वेल, द होल फैमिली इज definitely, वेल, बट इफ द मदर इज अनहैप्पी, definitely. इफ द मदर इज गिल्टी, सैड, एंग्री, द होल फैमिली गेट्स मेस्ड अप। सो हम लोग एक माँ के साथ काम करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि हमारे You काम का फायदा माँ के फैमिली को अलावा होता बहुत है, से यस, लोगों को पूरी मिलता है। फैमिली को होता है, यस यस। बिल्कुल एंड बिल्कुल बिल्कुल। टू माय डॉटर जो हमेशा टेंट्रम थ्रो करती थी, वो सब था, राइट नाउ शी इज सो मच अंडरस्टैंडिंग। लाइक मुझे मुझे ऐसा ये लगता है कि पूछना था आपको, क्योंकि आपने हाँ मेरे हाँ, साथ शेयर किया था, जो मुझे लगा लोगों को भी हो रहा है कि आपको पता है, आपने कहा था कि मैम मेरी बेटी भी अभी ऐसे सब कर रही है, मेरी बेटी को भी अभी वो भी हेल्पलेस फील करती है, और मेरी बेटी भी ये वो। और आपने देखा कि जब आपकी बिहेवियर चेंज हो गई तो आपकी बेटी की, आपने ही बोला था कि आपकी बेटी की यस भी यस। बिहेवियर चेंज हो गई। तो आप थोड़ा सा मतलब ऑफकोर्स उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, बट फिर भी जितना आप कंफर्टेबल हो आप बता सकती हैं कि इसमें आपका क्या अनुभव रहा। हाँ, तो फर्स्ट चीज जो मैं गुस्से वाली मदर हूँ, तो मेरी बेटी भी गुस्सा करने लगी थी लोगों पर। मेरे पे तो करती थी, बट अदर पीपल लाइक उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके फादर है, उसकी छोटी बहन है, सब पे वो गुस्सा करने लगी थी, लाइक। एंड मैं उसको हिट करती थी, तो वो अपनी छोटी बहन को कभी कभार हिट कर देती थी, राइट, थ्रू एंगर। और उसके जैसे मेरे एंगर एपिसोड आते थे, लाइक मैं चिल्लाती थी जोश जोश से या रोने लगती थी, वो भी सेव करने लगी थी। सब मिरर जैसा हो रहा था कि मैं जो जो करती थी, और माय हस्बैंड ने एक बार बोला था कि यार ये सेम तेरे जैसे बिहेव कर रही है, सो डू समथिंग फॉर दैट। एंड दैट वाज अ आई ओपनर कि यस, नाउ आई हैव टू डू समथिंग एक्टिवली। ये मोटिवेशन, ये योगा, मेडिटेशन, ये सब हो गया अभी। नाउ आई हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन इट, राइट। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब आप डिप्रेस फील करते हो, आप एंग्जियस फील करते हो, लोग आपको बोलते हैं यार योगा योगा कर करो, ले। मेडिटेशन करो, बट एक्चुअली मेडिटेशन से, अगर आप डिप्रेस हो, मेडिटेशन से मगज माथा खराब हो जाता है, बिकॉज हाँ नहीं, आई सही। ये मैं लोगों को एक्सपीरियंस। कह के थक जाती हूँ कि यार अगर आपको नेगेटिविटी या डिप्रेशन है तो मेडिटेशन मत करो, उससे ऊपर से और भी ज्यादा खराब होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये हुआ है। मैंने बहुत, मतलब जो 7-8 साल मैंने गुजारे, उसमें मैंने सब नुस्खे अपना लिए हैं कि ये करो वो करो, पर इससे कुछ नहीं होता। यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन इट। एंड मोस्टली जो मेरी नॉलेज है अभी, कि हमारे जो भी एडल्टहुड बिहेवियर होते हैं, उसके सारे रूट्स हमारे चाइल्डहुड में ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द रूट्स। हमारे चाइल्डहुड हमारा कैसा गया है, उस पे ही सब मैटर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे चाइल्डहुड में मुझे किसी ने फिजिकली नहीं मारा है, फिजिकली अब्यूज नहीं किया, स्टिल आई एम डूइंग दैट। व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, राइट। बिकॉज मुझे एबेंडेंट फील होता था, मुझे रिजेक्टेड फील हुआ है अपने चाइल्डहुड में। मैं कांस्टेंट, मेरा अगर मैं चाइल्डहुड के बारे में बताऊं तो मेरा ऐसा था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रही ही नहीं हूँ। मैं अपने दादा दादी अबैंडनमेंट के साथ, देखो, यस इमोशनल एबेंडेड, अबैंडनमेंट देखो। यस, मैं अपने दादा दादी के साथ रही हूँ। और आफ्टर सम टाइम माय दादा दादी आल्सो सेंड मी टू माय पेरेंट्स होम। सो ये मेरे लिए ट्रोमा है, एक्चुअली ट्रोमा है। मैं अभी भी कभी कभी इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी के चाइल्ड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ अबेंडमेंट, कि आपके एब्सोल्यूट। पास कोई इमोशनल और देखो, सिक्योरिटी हम नहीं इसको है। सीरियसली नहीं लेते, हम सीरियसली, हमको लगता है, बिकॉज मुझे याद है जब आप मेरे पास आई थी तो मुझे बहुत क्लियरली याद है, सेजल यू आर सेइंग अरे मैम ये सब तो सबके साथ होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एग्जैक्टली, आई रिमेम्बर दिस यस कॉन्वर्सेशन कि यस सेजल कह यस। रही थी कि मैम इतना तो कुछ बुरा मेरे साथ नहीं हुआ है, आप कैसे कह सकते हो कि ये बचपन से जुड़ा हुआ है, आप ये कैसे कह सकते हो, ये सब इमोशनल निग्लेक्ट ये तो हर घर में होता है मैम। तो ये एग्जैक्टली, इससे सेजल ने काफी मेरे साथ, मुझे याद है कि डिस्कशन डिस्कस किया था, किया और था आई हमने। एनकरेज इट ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू बिलीव कि नहीं, ये मुझे आपके क्वेश्चंस एड्रेस करने थे, क्योंकि मैं आपको
थेरेपी तभी इफेक्टिव होगी जब आप खुद ये चीजें समझे, राइट? तो मुझे याद है Yes. कि यू आर अ बिट स्केप्टिकल, और बहुत Yes. लोग ऐसे Yes. हैं, मतलब मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं, बोले मान इमोशनल अब्यूज, इमोशनल नेगलेक्ट क्या चीज होती है, ये तो कुछ भी नहीं होता, इससे तो ये तो नॉर्मल होता है सब फैमिलीज में। बट आज सेजल यहाँ बैठी है, उसने अभी उस खुद कहा कि उसमें फिजिकल अब्यूज नहीं था, पर बाकी काफी चीजें थी बिल्कुल जो नहीं हम था। अपनी सोसाइटी Yes. में एक्सेप्ट ही नहीं करते, बट और उसने Yes. खुद डिस्कवर Exactly. किया कि कैसे ये जुड़ा हुआ था बाद में। दैट वाज हर यस, इट जर्नी, वाज अ राइट? इमोशनल, क्योंकि एक चाइल्ड के पास वो मैं जब मतलब जब मेरी छोटी सेजल को अभी मैं सोचती हूँ तो उसके पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं थी कि अगर उसको उसको ओवरवेल फील होगा, उसकी कोई फीलिंग्स है, वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, दादी के पास जाएगी, दादा के पास जाएगी, या मदर के पास। एक कांस्टेंट सिक्योरिटी जो होती है आपके पास, कि जैसे आप होता है कुछ भी आके अपनी मम्मा को बोलते हो, फिर आगे आपको पापा को भी बोल सकते हो, बट एक 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 बंदा होता है आपकी लाइफ में, आइदर इट इज फादर और यस, इट इज मदर। यस। तो वो ऐसा कुछ सिक्योरिटी पैच ऐसा मेरे पास कोई नहीं था, राइट? मेरे पास बहुत सारे बिल्कुल। लोग थे जो मुझे बहुत सारे लोग, मैं मुझे अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने मेंशन, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो सबसे लाडली दिकरी हूं, ऐसे मुझे ऐसा बोलते थे, लाइक मैं बिगाड़ी हुई चौथी लड़की हूँ कि लाडली मुझे, दिकरी। यस, मुझे कभी भी मतलब मैं जो मांगू वो मिल जाता था, बट इमोशनली एवरीवन वाज एब्सेंट। यस, और वो यस। मुझे पता नहीं था, बिकॉज हमेशा मैंने जो सुना है मेरे चाइल्डहुड के बारे में कि जो, हाँ तेरे को तो ये मिलता था, तेरे को तो ये टॉय मिलता था, तेरे को तो ये फ्रूट खाने को मिलता था, लाइक तुझे कुछ शेयर नहीं करना पड़ता क्योंकि तू अकेले दादा दादी के घर रहती थी। बट द हाँ, हाँ, इनर, तो इसको तो, यस, द इसको इनर, पॉजिटिव देखा जाता है। मैं हमेशा ऐसा ही समझती कि ये सारी तो पॉजिटिव, मेरी दादी वॉज सो मतलब ऐसा बोल सकते सो मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ लविंग। हर एज। यस, तो वो हमेशा मुझे लव करती थी, वो जो हमेशा मुझे बोल्ड थॉट्स देती थी कि आप मतलब मैं जो भी मेरी बोल्डनेस है उसकी वजह से ही है, राइट? थोड़ी कंजर्वेटिव, थोड़ी नहीं, मैं कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो एक जो भी था वो मेरी दादी के साथ से ही आया है, तो वो सारी चीजें हैं। बट जो एक इमोशनल, वो मुझे ऐसा ही लगता था यार, उसमें क्या रिजेक्शन जैसा, इसमें क्या अब्यूज जैसा। बट मुझे थ्रू द इनर चाइल्ड वर्क मुझे डिस्कवर हुआ कि इट इज अ मतलब फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, इट इज अ फीलिंग ऑफ एब्डेंस, मतलब ऐसा लगता है हमको, बट अंदर से वो बच्चा हमेशा ऐसा फील करता है कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, राइट? तो वो भी एक था मेरे चाइल्डहुड में, मतलब जो हमेशा ऐसा लगता था मुझे कि ये ग्लोरीफाई चीज है, मतलब आई वॉज यूज टू हैव बेस्ट चाइल्डहुड, मुझे ऐसा लगता था, बट इट वॉज नॉट द बेस्ट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप बट आपकी ये लाइफ, भी मैंने देखिए आज भी एक रील डाली है कि भाई इनर चाइल्ड वर्क के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने चाइल्डहुड के अब्यूज के बारे में बात करते हैं, रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो माँ बाप के लिए गुस्सा ज्यादा बढ़ता है। आपका क्या अनुभव है आपका हाँ, ये सब यस, समझने के बाद? हाँ, ये मुझे आप प्लीज यस, शेयर कीजिए कि क्या यस, ये सब यस, समझने के बाद कि मम्मी ने आपको भेज दिया दादी के घर, दादी ने ऐसा किया वैसा नहीं किया, तो ये सब इनर चाइल्ड के बाद क्या इनके लिए आपके फीलिंग्स में क्या फर्क आया है? डेफिनेटली आई वॉज फॉरगेट टू मेंशन दिस कि इसमें भी हम्म, बहुत सारा चेंज आया है। मैंने जब शायद फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि मेरे मेरे पेरेंट के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, और टू माई हम्म, फादर इट्स वेरी गुड बट नॉट विथ माई हम्म, मदर, हम्म, बिकॉज आई नेवर फेल्ट इमोशनली कनेक्ट विथ हर, बिकॉज मैं उसके हम्म। साथ रही नहीं हूँ, लाइक टेंथ में हाँ, उसके घर बिल्कुल। गई थी टू, राइट? तो आई वॉज ऑलवेज फील, तो मुझे मैं बताती हूँ एकदम रो चीज है ये, कि मुझे वो जब कॉल भी करती थी तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या फोन करे छे यार, નથી વાત કરી મારે, लाइक इट वॉज यस। माई फीलिंग, मतलब आई एम हाँ। ब्रूचुअली रोली हॉनेस्ट राइट नाउ। सो मुझे नहीं, ऐसा नहीं, लगता था, मैंने बराबर। आपको बताया था भी कि मुझे हाँ, जैसे नहीं अच्छा लगा, मुझे बात करने में भी ऐसा लगता है बस 5 मिनट में फोन मूकी दो, बस पति करो, राइट? ओके, हाँ, बजावा बराबर। बराबर तबे सारी जो फिनिश्ड। एंड जब भी उसको जैसे मेडिकल टर्म्स में कभी भी हेल्प की जरूरत है, मैं उसे आराम से कर देती, मैं हर पेशेंट के पास साथ भी ये करती हूँ, मैं अपने फादर मदर के साथ तो कर ही सकती हूँ, बट इमोशनल कनेक्ट मेरा नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस वो हेल्दी रहने चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा सीन था जब मैं आई थी तब। आफ्टर आई थिंक फर्स्ट और सेकंड सेशन, आप जैसे आपने मुझे समझा था कि हमारी एनर्जी सिस्टम जब चेंज होती है तब सराउंडिंग एनर्जी भी, जो हमारे आसपास जो लोग जुड़े होते हैं उनकी एनर्जी सिस्टम भी चेंज होती है। एंड मुझे याद है आफ्टर आई थिंक सेकेंड सेशन आई कॉल्ड माई फादर एंड टॉक विथ माई बोथ पेरेंट फॉर 10 to 15 minutes एट अ स्ट्रेच। वो एक रैंडम बातें ही करे जा रहे थे, लाइक उनके बारे में, नॉट अबाउट मी, बट स्टिल आई डोंट फील एनी रॉन्ग थिंग इन दैट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है उनकी बातें भी कभी सुननी चाहिए, राइट? मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी हमेशा उसकी बात करती, मेरे बारे में कुछ नहीं पूछती,
आई यूज टू फील दैट। उस टाइम भी ऐसा ही था, उसने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा था, बट पर वो आपका जो इनर चाइल्ड था, जो ये फील कर रहा था, वो शायद हील हो चुका था, तो हील आप हो वही चुका था। वो ट्रिगर। हाँ। यस यस, तो उसमें मेरा ट्रिगर नहीं हुआ। एंड आफ्टर दैट आई थिंक 4-5 सेशन, माय पेरेंट्स के साथ मेरा जो भी रिलेशन है अभी भी है, लाइक इट्स, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, लाइक एंड तो फेब में शायद लॉजिकली नहीं, मेरे यहाँ दिल से यहाँ से, राइट, यहाँ मतलब से, ये नहीं यस कि आप यस। एफर्ट कर रहे हो कि नहीं मैम नहीं, ने कुछ बोला एफर्ट है, नहीं ऐसा उनके कुछ साथ, नहीं मैंने है। कुछ एफर्ट नहीं किया है, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे उस टाइम, राइट। मुझे अभी जो मेरे काम करना था वो मेरे एंगर पे या मेरे मेंटल स्टेबिलिटी हाँ पे ही सही करना बात। था, तो मेरा और फोकस ये एक वो नहीं था। आउटकम हो गया, इसमें आपने फोकस किया भी नहीं, पर एज अ बाई प्रोडक्ट ये चीज भी हो गई। यस यस यस। तो शायद फरवरी पे हम मेरे एनिवर्सरी पे डिनर पे गए थे, एंड हम बहुत अच्छे से हमने खाया वैन आई, मैं हम रोड पे ही खड़े थे, एंड मुझे पता नहीं अचानक से ऐसा, वो मैंने शायद मेंशन भी किया था, आपको याद हो कि नहीं, आई हग माई यस, पेरेंट्स, यू हैड टोल्ड मी, एंड यस। दैट वाज अ बेस्टेस्ट फीलिंग। मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि अब सब ठीक है, ऐसा मुझे फील हुआ था। जैसे हमको एक सिक्योरिटी फील होती है ना एक बच्चे को, जब जैसे कुछ भी होता है, अब मेरी जो दोनों डॉटर है, कुछ भी होता है, गुस्सा भी हुए, कुछ भी एंग्री, वो मेरे आके साथ अगर मेरे साथ हक करती है, वो दे काम डाउन, राइट। एंड मुझे वही फीलिंग, सेम फीलिंग मुझे उस टाइम आई थी, एंड वॉट इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, बिकॉज आपके पास ऐसा होना ही चाहिए कि मतलब जैसे आप अभी ऐसा है कि मैं, मुझे कुछ भी होगा मैं उनको हक कर सकती हूँ, एंड मैं कुछ अच्छा फील कर सकती हूँ, और ये आपने राइट। कभी नहीं किया था पहले ना, वही तो, यस यू आर नॉट यस। वेरी तो फिजिकली क्लोज टू। यू कैन से कि माई इनर चाइल्ड, माई छोटी सेजल met दैट पेरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इमोशनली, राइट। बिकॉज हाउ नाइस, लॉजिकली तो मैंने सो बहुत स्वीट। सब किए हैं, कि बहुत सब चीजें की है, कि उसका ध्यान रखते हैं, पैसे का हाँ ध्यान हाँ, रखते हैं, दवाई का, वो सब तो लॉजिकली हम करते हैं, कि जैसे सोच करना पड़ता है यार, जो माँ बाप है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, होती है, यस। पर ये और दिल एज की अ बात हुई। डॉक्टर, यस, ये दिल की बात है कि मुझे उस टाइम इमोशनल कनेक्ट हुआ था मेरे पेरेंट्स से। और अभी आई यूज टू कॉल देम सामने से, हाँ, एवरी 2 to 3 days सामने से मैं उसको कॉल करती हूँ, मेरी मम्मी को, ऐसे ही रैंडम, जैसे आप बोल सकते हो कि नॉर्मल फालतू सी बातें, बट मुझे अच्छा लगता है वो बातें करने का। एंड आई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आई यस, एम सो हैप्पी। मुझे एक अच्छा, एक इमोशनल, मतलब ऐसा फील हुआ है कि नहीं, मुझे कभी भी अच्छा, मैं कुछ शेयर नहीं करती हूँ इतना अभी भी, बट फिर भी बातें करके बहुत अच्छा लगता है, तो राइट। तो देखिए, ये भी ये मैं सब फॉलोअर्स को वही कहना चाहती हूँ जो मैंने रील में डाला है, पर लोग कई बार क्या उनको लगता है मैम तो कहते हैं उसमें कौन सी, ये तो बस फंडा फंडा मारते हैं, बट एक्चुअली ये सबने अनुभव किया है कि जब उनका जो इनर चाइल्ड पार्ट है, जो जो माँ बाप से गुस्सा है, जो रिजेक्टेड फील हो रहा है, जो अबैंडन फील हो रहा है, जब आप खुद ही उसको हील करते हो, तो फिर जब माँ बाप के सामने आते हो, तो वो हील्ड पार्ट्स के साथ आप आते हो, तो माँ बाप के यस लिए जो अंदर का जो भी ब्लॉकेज है वो निकल जाता है, और आप माँ बाप को बिना लेंस के आप उनको जो है वो देख सकते हैं आप। तो यस इसे इसे मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं, अगर समझो माँ बाप वाकई में बहुत अब्यूजिव भी हैं, तो एटलीस्ट ये काम करने से आप न्यूट्रल हो जाओगे, वो हर्ट आप मरते दम तक पकड़ोगे नहीं, और ये सब अपने लिए ही यस करना है, माँ बाप के लिए तो बाई प्रोडक्ट है अगेन, बट अपने लिए ही करना है कि हम खुद अपने आप के साथ अच्छे से खुशी से रह सके, और जब हम खुश है तो एवरीबडी अराउंड अस यस, एवरीबडी इज बाउंड अराउंड टू अस बी इज हैप्पी। हैप्पी, यस यस यस। तो एक और चीज है, मैम आपको शायद शेयर करना चाहूंगी कि हाँ। आई, एज यू नो, आई एम ओवरवेट। सो मेरा एक, मैंने ये भी एक वर्क किया अपने पे, कि मैं किसी भी तरह से फिटनेस में थी नहीं, लाइक फिटनेस में इन द मीन्स कि अभी भी मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि मैं, मतलब मेरे आइडियल गोल वेट पे हूँ, बट दैट डजेंट मैटर टू मी। मैं हमेशा आई यूज टू, मुझे पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है, मोटिवेशन लाए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी बहुत डाइट कर ली, 1 आध 2 किलो घटा दिया, एक साइज थोड़ा अच्छा ड्रेस पहन लिया, खत्म, राइट। ऐसा होता था मेरे साथ। आई डोंट नो, ये एक बाय प्रोडक्ट है इन सब चीजों का, जो मेरा फोकस भी नहीं था। जब मैं हाँ आई हाँ। थी तब तो मुझे गुस्सा ही कम करना था, और अंदर से अच्छा फील करना था, वो ही 2 ही गोल थे, और मेरी बच्ची के साथ मेरे रिलेशन अच्छे करने थे, वो 3-4 ही गोल थे मेरे, ये सब तो गोल में था ही नहीं। बट आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज वेरी रेगुलरली, आई वेरी फोकस्ड गुड। ऑन माई डाइट, I am doing yoga for that humming breathing,
and Yes. some asanas also like Surya Namaskar and other asanas. And I was so regular. मैं मेरी एज आई एम 37, मैं मेरी 37 की एज में मैंने कॉन्स्टेंटली मतलब कोई चीज नहीं की है. मैं आई एम डूइंग दिस सिंस 4 months. Very सिंस good. मार्च. Very good. क्योंकि ये Excellent. मेरे लिए एक सरप्राइज है. इट इज अ सरप्राइज. व्हाई? बिकॉज आई वाज नेवर कॉन्स्टेंट. मेरा एक ये भी प्रॉब्लम था कि मैं किसी भी चीज में कांस्टेंट रह ही नहीं पाती थी. तो ये एक मैंने जो अचीव किया है, और जो अचीव किया है मतलब ऐसा नहीं कि इसमें भी अप्स एंड डाउन्स हैं, बट अप्स एंड डाउन्स आए, बट आई नॉट फोकस ऑन परफेक्शन. बिकॉज हमेशा हम क्या करते हैं कि हम किसी भी सही गोल पे बात. जाते हैं. यस, बट आई डिडंट फोकस ऑन परफेक्शन. आई फोकस ऑन कंसिस्टेंसी ओनली. I show Very up for 70 times, 70% time, it is fine, right? I focus on that कि मैं 70% टाइम ही वर्कआउट कर सकती हूँ, it is fine. I am doing for 70%, मतलब 70% मैं कर पा रही हूँ, that is वही fine. जो बगीचे पे फूल है, सुंदर है, उस पे Exactly. फोकस करो. That theory, बाकी ये सड़े हुए that theory, मैं आपको बोल नहीं infected. सकती हूँ. मतलब yes, that theory helped me in every aspect of my life, every. राइट. जैसे एक मेरा एक फियर था कि मुझे कार लर्निंग में, आपको पता है वो, कि मुझे कार हाँ. लर्निंग में हमेशा ऐसा लगता था, बिकॉज द चाइल्डहुड मेमोरी रिलेटेड टू दैट कि मुझे साइकिल सीखनी थी. तब मैं इतना मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, और मुझे बहुत सारा ट्रोमा हुआ था ड्यूरिंग दैट लर्निंग प्रोसेस, राइट. सो दैट ट्रोमा, अभी वो तो हो गया, मैंने साइकिल चलानी सीख ली, आई एम ड्राइविंग एक्टिवा ऑल्सो, बट दैट ट्रोमा कैन अफेक्ट सो मच थिंग. मतलब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि दैट ट्रोमा दैट अकरिंग, आई थिंक मैं 8 या 9 ईयर की थी या 10 ईयर की थी, वो अभी मैं 37 ईयर की हूँ, मुझे वो कार ड्राइव करने में अभी भी वो मुझे प्रॉब्लम करती है, राइट. तो वो भी एक शिफ्ट हो गया है कि आई एम, वो मैं हमेशा ऐसे प्रोकार्सिनेट करती थी कि नहीं सीखना है, ठीक है, नई कार आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट अभी आई एम, मतलब मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे ये लर्न करना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, राइट. तो ये भी एक Very good. शिफ्टिंग चेंज है. यस. तो ये Very जो good. मेरा Very good. कोई गोल ही नहीं था, बट ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये कोई जो चीज ये हमने सब थेरेपी में काम ही नहीं की है, बस नहीं ये की थी. आउटकम देख रहे एग्जैक्टली. हैं. और यही कहना चाहते हैं कि देखिए, लाइफ में हर चीज थेरेपी से फिक्स नहीं होती है, बट अगर हम मेजर चंक्स, आपके जो मेजर जो इश्यूज हैं, जो डिसफंक्शन आपको बना देते हैं, उस पे भी अगर आप काम कर लो और आपकी गाड़ी थोड़ी सी पटरी पे आने लग जाए ना, तो बाकी की जर्नी आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो. आपको थेरेपिस्ट की जिंदगी पर जरूरत नहीं है. थेरेपिस्ट हर हम्म. चीज आपके लिए सॉल्व नहीं करेगा, पर अगर आपको वो साइकिल चलाना सिखा दिया, गाड़ी पटरी पे चलाना सिखा लिया, तो बाकी तो इधर उधर कभी भी आप होंगे तो आपको उठ के चलना वापस आ जाएगा. दैट इज माई जॉब एज अ थेरेपिस्ट, कि अगर आप गिर भी गए तो यू शुड बी एबल टू गेट अप एंड वॉक ऑन योर ओन, ना कि यस. मैम ही कर सकते आपने हैं. तो ये भी इंजन एक चालू कर बड़ा दिया है, अभी ये गाड़ी भागने वाली है, ऐसा है. नहीं, बहुत तो अच्छा अभी सेजल, आज आपने तो बहुत सारा शेयर किया जो आई एम श्योर मेरे फॉलोअर्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा. आप कुछ यस. लास्ट में कुछ एडवाइस क्या देना चाहेंगी, आप जैसी वर्किंग वुमेन को या मदर्स को, आप अपनी तरफ से, नथिंग टू डू विद, जनरली आपको क्या कहना है? दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू शेयर योर व्यूज. यस. आई फर्स्ट थिंग के मदरहुड जो भी है, हम क्या होता है मदरहुड में घुस जाता है. मदर इट इज ओनली पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ, राइट. फर्स्ट हमको एब्सोल्युटली. वो समझना है कि क्योंकि आप मदरहुड में से घुस नहीं सकते, आपके अदर रोल्स भी है, अदर पार्ट्स भी है, आपको उसको भी इतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप एक मदरहुड को देते हैं. सेकेंड इज के ऑलवेज टुक टाइम फॉर योर सेल्फ इन अ डे. भले ही वो 15 मिनट से स्टार्ट हो, बट 15 से 30 मिनट अपने आप के लिए काम करो. लाइक आपको जो पसंद है करो, क्योंकि ये सब बोलते हैं ना कि 15 मिनट्स ये करो वो करो, वो मुझे ऐसा ही लगता था कि क्या ये सब बोल रहा है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है. बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस, मुझे पता है कि ये बहुत अफेक्ट करता है हमारी मतलब खुद को, कि हमें क्या. तो आपको मतलब गो फॉर अ वॉक, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड गिल्ट फ्री, कि मैंने बच्चे को खिलाया नहीं और मैं तो ये करने लगी, गिल्ट बिल्कुल. फ्री. यस. वो आप चीज करो, एंड इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डे. बिकॉज क्या होता है कि फिजिकल मतलब जो एक्टिविटी होती है इज कॉन्स्टेंटली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, एंड इट इज आई एम अ लाइव प्रूवन एग्जाम्पल. बिकॉज राइट यस. नाउ ऐसा है कि मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ, आई फील सो एनर्जेटिक एंड सो गुड,
राइट तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट Absolutely. चीज है जो Yes. यस हम जो नहीं करते डू वॉट एवर चूज डांस जुम्बा एरोबिक्स जिम जो आपको पसंद है कोई फिक्स नहीं है इसमें बट डू वन फिजिकल एक्टिविटी इन अ डे राइट एंड इम्पोर्टेंट थिंग आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपके बच्चे के लिए इन जनरल वर्क ऑन इट अगर आप वर्क नहीं सकते तो गो टू थेरापिस्ट उसमें कोई शेम नहीं है कुछ नहीं है ऑलवेज टुक हेल्प बिकॉज जो आप कर रहे हो आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से जो भी आप प्रॉब्लम या जो ट्रोमा आप जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो वो आप स्टॉप करो यहीं से कट डाउन हियर ओनली राइट बिल्कुल. जो मेरे Very good. यस Yes. क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ कि आगे वाले जनरेशन में ये ट्रोमा तो नहीं जाएगा बिकॉज एज यू मतलब मुझे आपने जो सीखा है और मैं अपनी रील से मैंने सीखा है कि एब्यूज एंड ट्रोमा लाइव थ्रू जनरेशंस राइट एंड जो पैटर्न दिखती है वो भी सेम होती है कि जैसे जो मदर करी वही डॉटर करी जैसे मतलब ये सब होता है तो राइट नाउ आई एम मुझे इतना तो है कि हमें क्योंकि हम मॉडर्न मदर है हम चेंज ला सकते हैं राइट हम वो बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, हमें absolutely. सिर्फ किचन में ही काम करना है कि हम कुछ ऐसे लिमिट में रिस्ट्रिक्ट नहीं है वी कैन डू राइट वी कैन वियर Absolutely. साड़ी एंड Very वी कैन right. वियर Very right. सेक्सी बोल्ड ड्रेस ऑल्सो तो हम कुछ भी कर सकते हैं Absolutely. हमारे में इतने पावर है Absolutely. तो लेट्स वर्क ऑन अवर सेल्फ एक्सेप्ट अवर सेल्फ फर्स्ट एंड वॉट इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉट एवर यू फील वैलिडेट इट इट्स ओके टू फील वॉट एवर यू फील राइट बिकॉज Yes, हमेशा मुझे जो absolutely. भी Don't फील judge yourself. यस डोंट क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार मुझे क्यों ऐसा फील होता है सारी मदर्स को कितना अच्छे से हैंडल करते हैं मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है राइट मैंने आपको बोला और था कि हमें मैं हमें यूज्ड टू हमें सोसाइटी भी कहती है ना अरे तने દુખી થવાનો શું હક છે જો તારી પાસે તો ગાડી છે તારી પાસે તો કરિયર છે તારી પાસે તો આ છે so again we sometimes are not even accepting that it is okay यस sometimes to feel bad na यस 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 hmm अभी भी hmm ऐसा hmm होता है तो मतलब मैं अपनी डॉटर को बोलती हूँ देखो मम्मा को अभी गुस्सा आ रहा है आई फील वेरी ग्रम्पी लेट्स hmm गिव मी 15 मिनट्स एंड वो समझ जाती है कि मुझे अभी मम्मी को टाइम देना पड़ेगा प्रोसेस कर लेती हूँ मैं अपने आप से कि मुझे अभी मतलब मैं काम डाउन हो जाती हूँ क्योंकि रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोच लेती हूँ और मैं अपनी उसको ये मेरे लिए अगेन अ वेरी बिग थिंग कि मैं उसको बोलूँ कि मम्मा को गुस्सा आ रहा है मम्मा इज वेरी ग्रम्पी प्लीज गिव मी 15 मिनट्स एंड वो आराम से देती थी very good एंड मैं very good एंड मैं आपने जैसा बोला कि मैं उसको भी सिखा रही हूँ कि हाउ टू हैंडल अवर जैसे emotions बैड इमोशन ये जो नेगेटिव इमोशन है हम हैंडल कर सकते हैं उसको राइट हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा एंड राइट नाउ बिल्कुल आई एम बिल्कुल मतलब ऐसा है ना कि रिएक्टिंग करने से पहले मैं थोड़ा पोज लेती हूँ कि इट्स ओके मतलब कभी कभी रिएक्ट हो भी जाता है बट इट्स फाइन हम सब राइट ह्यूमन बीइंग्स मैं है वी आर ऑल वैलिडेट ह्यूमन करती बीइंग्स हूँ जो भी मैं फील करती हूँ उसको वैलिडेट करती हूँ तो मैं मदर के लिए बहुत वही अच्छा बोलना चाहूँ कि यस कि आप अपने आप को वैलिडेट करो आप किसी चीज में कम नहीं हो यू वैलिडेट योर सेल्फ एक्सेप्ट योर सेल्फ वर्क करो उस पर अगर नहीं हो पा रहा है तो गो टू अ थेरापिस्ट इट्स ओके टू टेक अ हेल्प इट्स ओके नहीं इट्स अ ग्रेट टू टेक अ हेल्प बिकॉज आप उससे बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे कि लाइफ में जो अच्छी अच्छी चीजें आपने फील ही नहीं की वो सब आप फील कर पाओगे तो वाई नॉट गो जैसे टू द मेडिकल डॉक्टर मतलब आप गो टू है आप मेडिकल यस डॉक्टर है तो आपको पता है कि लोग यस मेडिकल इश्यूज के लिए तो बड़े आराम से आ जाते हैं टीबी बड़े वीबी के आराम लिए से तो हर यस महीने जाते हैं यस राइट बीपी की दवा अच्छा के लिए किसी ने हर महीने पूछा आ जाते हाँ 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 यस वो यस मिहिर यस राठौर is asking can I नहीं मिहिर राठौर is asking that can I have a reference document on trauma passing through generations please yes मिहिर there's a lot of research on this आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे wellnessspace.net और इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसके बारे में रील पोस्ट की है हमारी वेबसाइट पे एक कंपाइलेशन है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ उसमें भी रिसर्च की समरी है जो पिछले 20 सालों में की गई है दुनिया भर में जिसमें कहा गया है कि ट्रॉमा पीढ़ी दर पीढ़ी इट passes on to generations because of parental behaviors because children learn through the attachment theory so there are a lot of reasons physiological and psychological and neuroscience reasons also which support the fact that trauma does pass through generations pass on to generations मतलब अगर abusive parents है तो बच्चे भी अब्यूजिव अलग तरीके से पर वो भी बच्चे और उनके बच्चे अल्कोहलिज्म है ट्रॉमा है ये सारी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है तो इसका सॉलिड रिसर्च है और ये आपको बहुत सारे आप गूगल ही कर लीजिए एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड ट्रॉमा पासिंग ऑन जनरेशन आपको काफी रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे
तो और किसी के क्वेश्चंस नहीं है सेजल, बट लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक People यू सो are मच. again saying that very very brave of you to come. और राधिका पाटीदार के मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पर मैं इन चीजों को के सामने मैम जैसे है फील करती हूँ, पर खुद पर काफी काम करने पर थोड़ा चीजें ठीक है. आज तो बहुत कुछ सीखा मैंने. थैंक यू सो मच एंड लव यू. सो सेजल, आई थिंक बहुत से लोगों को ये लाइव अच्छा लगा है, ऐसा मुझे लग रहा है, व्यूअर्स से भी और कमेंट्स भी. आप I really appreciate you, Sejal, for coming here and talking about your journey, and थैंक यू for मैम. being so brave about this. Anything, any last few lines? We still have 3 minutes, and the stage is all yours. लास्ट लाइन बस मैं वो ही बोलना चाहूंगी, एक्सेप्ट एंड लव योर सेल्फ. बिकॉज दरी जो मैम बोलती हो ना कि आपके अंदर कुछ नहीं है ना, वो आप बाहर कभी भी, अगर आपके अंदर कॉफी भरी है तो ही आप कॉफी दे सकते हो. अगर अंदर कचरा भरा है तो आप अंदर कचरा ही दोगे. सो वर्क ऑन योर सेल्फ. आपका जो भी प्रॉब्लम हो, एवरी रिमेंबर वन थिंग, एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट सॉल्यूशन. मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ. एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट सॉल्यूशन. आपको बस एक पाथ फाइंड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में सॉल्यूशन ढूंढने जाना है, आपको डेफिनेटली मिलेगा. सो वर्क ऑन सेल्फ. और कोई भी प्रॉब्लम को आप ऐसा तो फील होता ही है ना, एंग्जाइटी तो होती है ना, डिप्रेशन तो होता है. इट्स नॉट नॉर्मल. यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट. ऐसे नॉर्मलाइज मत कर दो ये सब चीजों को. हाँ डिप्रेशन तो आता है ना, डिप्रेशन इज नॉट नॉर्मल. अगर नॉर्मल चीज जैसे नॉर्मल एंग्जाइटी सबको होती है, बट थ्रू आउट आप अगर एंग्जियस हो, थ्रू आउट डिप्रेस्ड हो, तो इट्स नॉट नॉर्मल. यू हैव टू वर्क ऑन इट. You should take care. You have to do यस. something about it. एंड आई इसको वाज, carpet मतलब के मैं नीचे सब मत अभी भी दबाओ. मुझे कभी कभी ऐसा, यस, कि टेक इट वन डे एट अ टाइम. आप ऐसा मत सोचो कि हाँ अभी तो कितना, कब मेरा हील होगा, कब, ऐसा नहीं. टेक वन डे एट अ टाइम. आपने आज के आज ही किया वो ही मैटर करता है. कल शायद आप हो ना हो. सो बेटर टू फोकस ऑन राइट नाउ. राइट. यस. तो इट्स अ वेरी वेरी न्यू मच. मी. आपने क्या सोचा था कि आप लाइव पे आओगे इंस्टाग्राम पे? आपने सोचा था मैंने कि एक्चुअली कुछ नहीं. मैंने थोड़ा बहुत सोचा था कि मुझे जो चीजें जैसे मदर को बोलनी है, बिकॉज मदर, मुझे ऐसा लगता है हमें एक और लाइव करना चाहिए. बिकॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वन ऑफ माय कंसर्न, जो मैं उससे सफर भी हुई हूँ. तो मुझे मेरा अब एक मोटा है कि मुझे उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन, देखिए, मैंने एक लाइव किया था वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अबाउट मेनोपॉज, पर मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाला किया नहीं है लाइव. तो एंड आई एम द विक्टिम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. Yes, and medical doctor also. I've gone through that. Yes, so we can discuss and we can मतलब क्योंकि बहुत सारी मदर्स को ये पता ही नहीं होता है. And my whatever disturbances, भले ट्रोमा का रूट चाइल्डहुड में था, बट एक्चुअल सरफेस पे आना पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ही स्टार्ट हुआ था. तो ये एक, मुझे उसके लिए मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया कि मैंने सोच रखा है कि इसके लिए मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी. हाँ, जरूर. और हम लोग जरूर तो हम व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को भी इसके बारे में बताएंगे और अपनी खुद की जर्नी शेयर करेंगे. मेरे भी जर्नी है इस एरिया तो में. आप अपनी जर्नी, मैं भी शेयर करूंगी खुले दिल से. और हम सबको, शायद एक लोग भी, अगर एक बंदा भी आगे आकर, एक मदर भी अगर आएगी और उसको हील करेगी ना अपने जो भी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने, मतलब यूनिवर्स मेरे को ब्लेस्ड है. मैं ब्लेस्ड हूँ यूनिवर्स से कि मतलब आई एम एबल टू हेल्प वन पर्सन ऑल्सो. Right? 100%. Yes. We are doing this precisely for that, Sejal. That yes. whatever we have spoken today and discussed, अगर किसी में कोई शिफ्ट आ जाए, किसी में एक बल्ब चालू हो जाए, या किसी में कुछ बिहेवियर में कोई फर्क पड़े, एक बच्चा कम अब्यूज हो, एक फैमिली कम दुखी हो, तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस लाइव. वरना हमें कोई ना, मुझे ज्यादा थेरेपीज की जरूरत है, ना सेजल को कोई अपना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना कुछ नहीं. आई हैव अ प्राइवेट अकाउंट ओनली, तो कुछ ऐसा है नहीं. आई नो. तो हम दोनों ने बस इसीलिए डिसाइड किया, और आई थिंक सेजल भी अग्री करेगी कि हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है. हमने ना क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किए. हमने सिर्फ कहा था कि आके जो मन में है वो हम बात करेंगे, ताकि लोगों तक जाए और लोग सुने. और क्या पता ये कॉन्वर्सेशन में क्या चीज आपको काम आ जाए, आप में टच कर जाए, एंड आप अपनी लाइफ चेंज कर सको. तो यही इंटेंशन के साथ अभी 10 बज गए हैं सेजल. सोने का टाइम हो गया है हमारा. थैंक यू. आई रियली अप्रिशिएट दिस.
Thank you Thank you very so much. much. And for all my followers, thank you so much for seeing this live. If you want to know more about inner child work, we have a short 12-hour online workshop coming up on inner child, and it will be concepts and practices. It is not replacement for therapy, but it will definitely help you be a better parent. So just wanted to inform you कि ये मंडे से शुरू हो रही है, जिसको इंटरेस्ट है आप आ सकते हैं, वरना मेरी फीड पे ही मैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप में पेशेंस है तो मेरा इंस्टाग्राम वॉल देखिए, 900 से ज्यादा रील है, और जो चीज मैं आपकी लाइफ थेरेपी चेंज हो में जाएगी। बताती हूँ, हाँ वो सब मैं शेयर करती हूँ। कुछ भी मैंने अपने आप छुपा के या ऐसे दबा के रखा नहीं है, जो कुछ है सब कुछ मैंने वहां शेयर किया है। सो प्लीज गो थ्रू दैट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सेजल Thank you फॉर so एवरीथिंग। much for टेक केयर। helping me in my healing journey. Thank you so much. Because थैंक यू सेजल। Gunjan sir को भी बताना, because गुंजन it's सर यहीं पे है, गुंजन सर एक तो सेकंड आ सकते हैं? उनको आ जाओ आ जाओ। वो नाइट सूट में बैठे हैं तो बोले मैं it's कर, fine, पर it's पर गुंजन fine. सर का इतना मेंशन हुआ है, तो ही इज राइट हियर। शी रियली ये रहे कहा, ये रहे देखो गुंजन Hello sir. सर। Thank you so much. Thank you, thank you, वन thank you मिनट, so much. नाउ ही कैन हियर यू। Thank you so much sir. आपने क्या किया है आपको पता नहीं है. You did magic on me. Because your whatever you did, it's helping me. उस दिन जो भी किया था, it's helping me right now today also, right? So it is a very big, and you did it in a very fatherly way. I feel very overwhelmed thinking of that कि जो आप एक father करता है ना अपने बच्चे के लिए, आपने इसी तरह से मेरे साथ किया था, जो भी मतलब आपका सेशन था. So I am really grateful for that कि मतलब I am so lucky कि मैं आप दोनों लोगों से मिली हूँ physically in person. And I have a selfie with both of you. So, No, very nice to thank hear. you so And much. I am using the stick without the stick, right? Yes, definitely. Correct. All the best. All the best. Thank Okay, you for the okay, kind words. okay. Thank you. Bye, bye, ma'am. Bye Okay, bye. bye.